Unit 3, Friendship and Duty. In the last video, we have discussed about वर्कबुक में जो एक्सरसाइजेस थी वो हमने सेकंड तक की थी. नाउ ओपन पेज नंबर 26. उसका थर्ड क्वेश्चन जो है वहाँ से बाकी है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 2 और 3 सेंटेंसेस ईच. आपको आंसर है वो 2 या 3 सेंटेंसेस में देने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द पुलिसमैन थिंकिंग अबाउट वाइल पेट्रोलिंग के टाइम पर पुलिसमैन क्या सोच रहा था. तो द पुलिसमैन ऑन द बीट मूव्ड अप द एवेन्यू इम्प्रेसिवली. द इम्प्रेसिवनेस वॉज हैबिचुअल एंड नॉट फॉर शो. 4 स्पेक्टेटर्स वॉज फ्यू कि वहाँ पर जितने लोग दिखाई दे रहे थे वो बहुत ही कम थे. द टाइम वॉज बेरली 10 o'clock एट नाइट कि 10 o'clock के आसपास का टाइम था. बट चिली गस्ट ऑफ वाइंड विथ टेस्ट ऑफ रेन इन देम हैड वेरी हाई डीप पीपल्ड द स्ट्रीट्स. ठीक है, ये आप लिख सकते हो. फिर सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द स्ट्रेंजर से टू द पुलिसमैन कि स्ट्रेंजर है वो पुलिसमैन को क्या कहता है. तो the stranger say to the policeman that I am just waiting for a friend. यानी कि he was just waiting for a friend. वो फ्रेंड के वेट कर रहा है. It's an appointment made 20 years ago. वो अपॉइंटमेंट 20 years ago हुई है. Sounds a little funny to you कि आपको अजीब लग रहा होगा. I will explain you that he explains the policeman that about long ago there used to be a restaurant where the store stands, Big Joe Brandy's restaurant, and they have decided to meet again after 20 years at the same time and same place, no more matter वेयर दे माइट बी. यानी कि हम फ्रेंड्स ने डिसाइड किया था कि 20 साल बाद हम लोग फिर से मिलेंगे जो भी हमारी कंडीशन हो. ओके, फिर आपको ये सारे क्वेश्चंस खुद कर लेने हैं. मैच ए विथ बी वो है जिमी वेल्स. तो ए सेक्शन में है राइट द करेक्ट लेटर ऑफ सेक्शन बी इन द आंसर सेक्शन. आंसर सेक्शन में आपको लेटर्स चूज करके लिखने हैं. और देयर माइट बी मोर देन 1 मैचिंग्स यानी कि यहाँ पर 3 दिए गए हैं ए में और बी में है वो बहुत सारे दिए गए हैं. यानी कि ये एक के लिए है वो बहुत सारे आंसर्स भी हो सकते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट वन इज जिमी वेल्स. तो उसका आएगा कैसा था वो, तो ओल्ड चैप था, तो बी ऑप्शन. ओके, फिर केस अपलोडर सी. फिर है एफ द ऑफिसर ऑन बीट. ठीक है, फिर सेकंड है बॉब, तो उसके लिए क्या आएगा, मैन इन द डोरवे. फिर है डी मैन फ्रॉम वेस्ट और जी मैन विथ डायमंड वॉच. फिर थर्ड है द टॉल मैन. तो व्हाट विल कम, द आंसर विल बी E, a man with pug nose. Then fifth question, put a tick mark right in the box against the following statements if they are true and a cross mark if they are false. First is the policeman on the beat knew that a criminal from Chicago was to come at that place. What will be the answer? Right. Second, the appointment between the two friends was made 20 years ago. Right. Third, never did the two friends correspond after their parting. Wrong. Fourth, the time fixed for the meeting was 10 a.m. Wrong. Fifth, Bob had to compete
with some very intelligent men to become rich. Wrong. 6. The policeman on the beat had a stick in his hand. Right. 7. Joe Brady's restaurant had gone when the two friends met after 20 years. Right. 8. Bob was not at all happy for being in the West for almost 20 years. Wrong. Bob realized that he had wrongly taken the other man as Jimmy Wells near a drugstore. Right. 10. The tall man who introduced himself to Bob as Jimmy Wells had a pug nose. Right. Then is word power in page number 26. Question 1. Match A with B. Write the correct number letter of section B in the answer section. Matches आपको करने हैं A and B. First one is one who watches a sport event. D. Spectator. Second, one who owns and manages a place where meals are prepared and served. E. Restaurateur. Third, one who is loyal in supporting a person. F. Staunch. Fourth, one who keeps on working without enthusiasm or interest. B. Egoist. Fifth, one who walks along vehicle ways. G. Pedestrian. 6. A police officer who walks or drives to prevent or to deal with crime. Patrolman. Question 2. Make verbs of the following words and use them in the sentences of your own. आपको जो वर्ड दिए हैं उसके वर्ब लिखने हैं. जैसे कि फर्स्ट है इम्प्रेसिवली और उसका वर्ब आएगा इम्प्रेसिव. ओके, तो अभी सेंटेंस आपको खुद बनाने हैं. मैं आपको वर्ड के वर्ब बता देती हूँ, आपको सेंटेंस खुद बनाने हैं. इम्प्रेसिव का यूज़ करके आप खुद सेंटेंस बनाइए. ओके. फिर सेकंड इज सर्टेन, तो उसका वर्ब होगा सर्टिफाई. CERTIFY, सर्टिफाई. थर्ड इज डिनर, उसका होगा DINE, डाइन. फोर्थ इज प्रपोजिशन, तो उसका होगा प्रपोज, PROPOSE, प्रपोज. फिफ्थ इज एग्जिस्टेंस, तो उसका होगा एग्जिस्ट. फिर सिक्स है लार्ज, तो उसका होगा एनलार्ज. सेवंथ है क्वाइटली, तो उसका होगा QUIET, क्वाइट. ओके, सेंटेंस आपको खुद बनाने हैं. उसके बाद में है रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स इन द सेंटेंस विद द वन गिवन इन द ब्रैकेट. ब्रैकेट में दिए गए हैं, उसका चूज करके आपको अंडरलाइन वर्ड निकाल देना है, उसके बदले जो उसका मीनिंग होता है वो रिप्लेस करना है. फर्स्ट इज एट द टाइम ऑफ कर्फ्यू मिलिट्री मैन वेर ऑन द बीट, तो मेक अलर्ट है, क्वाइट कोऑपरेटिव है, टेकिंग राउंड्स एज पार्ट ऑफ ड्यूटी, तो आएगा ऑन द बीट का आएगा टेकिंग राउंड्स एज पार्ट ऑफ ड्यूटी. सेकंड है आई लाइक टू गो टू अ मूवी नाउ एंड देन, तो क्या आएगा ओकेशनली, तो आपको पूरा लिखना है आई लाइक टू गो टू अ मूवी ओकेशनली. ओके, ये आपको खुद कर लेना है पूरा. उसके बाद में आप 31 पेज ओपन कीजिए. पिक्चर रीडिंग है. स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली एंड राइट 8 सेंटेंस आपको लिखने हैं. यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है वो सब पिक्चर को ऑब्जर्व करके आपको लिखने हैं. ठीक है, कि देयर इज अ स्कूल, सम बॉयज आर ड्रिंकिंग, सम बॉयज आर स्मोकिंग, इट इज़ वेरी हार्मफुल बिकॉज दिस इज़ अ प्लेस वेयर स्टूडेंट्स कम एंड गो. ठीक है, इस तरीके के 8 सेंटेंस एटलीस्ट आपको बनाने हैं, जैसे भी आपको आते हैं वैसे. फिर राइटिंग, उसमें है राइट अ लेटर टू अ फ्रेंड हाउ यू
unfolded the secret of the things frequently getting stolen from the bags of your classmates, you may take help of clues. यानी कि योर फ्रेंड को लेटर लिखना है कि किस तरीके से आपके क्लास में है वो उसमें से बैग में से चीज़ें क्लासमेट्स की चोरी हो रही हैं, तो उसके बारे में कैसे आप अपने फ्रेंड को लेटर लिख के बताते हैं कि एक के बाद एक कैसे पता चला कि किसने चोरी की थी। तो क्लूज़ है फ्रीक्वेंट, स्टीलिंग यानी चोरी करना, फर्स्ट मार्क द टाइम ऑफ स्टीलिंग, फिर आपने देखा कि कब कब चोरी हो रही है, इंक्वायर्ड एंड शॉर्टलाइज सस्पेक्ट, कौन कौन शंकास्पद है वो आपने देखना चालू किया, ऑब्जर्व देयर मूवमेंट्स एंड बिहेवियर, जो लोग थे उनका बिहेवियर कैसा था, उनकी मूवमेंट कैसी थी, जैसे कि रिसेस में चोरी हो रही थी तो किस तरीके के कौन कौन है वो क्लास में जाने की कोशिश कर रहा था, फिर ऐसा भी हो सकता है कि छुट्टी में चोरी हो रही है तो कौन कौन जाने की कोशिश कर रहा है, तो उनकी मूवमेंट और बिहेवियर चोरों की, ठीक है। बिकेम विजिलेंट, फाइनली कोट द पर्सन, किस तरीके से आप ढूंढ निकालते हो वो इंसान को, कुड डू एज हैड रीड मैनी डिटेक्टिव स्टोरीज बुक्स, क्योंकि आपने बहुत सारी स्टोरी बुक पढ़ी है, आपको आप ये कर सके क्योंकि आपने बहुत सारी जासूसी की किताबें भी पढ़ी हैं, ठीक है। तो आपको लेटर लिखना है, लेटर की पैटर्न आपको पता है, ऊपर एड्रेस आएगा, फिर आपके फ्रेंड को आप लिखते हैं तो डियर फ्रेंड लिख सकते हो, और लास्ट में आपका नाम, फिर राइट अ रिपोर्ट ऑन द थेफ्ट इन द योर नेबरहुड, आपकी बाजू में चोरी हुई है, बेस्ड ऑन द पॉइंट्स गिवन बिलो, तो उसके बारे में जो पॉइंट्स है दिए गए हैं उसके हिसाब से आपको लिखना है कि व्हेन इट हैपेंड, कब ये हुआ, व्हेन इट हैपेंड, व्हाट एक्चुअली हैपेंड, क्या हकीकत में हुआ, हाउ डू यू गेस, आपने कैसे गेस किया उसको, मस्ट हैव हैपेंड, कि जरूर ऐसा कुछ हुआ ही होगा, व्हाट वाज स्टोलन, क्या चुराया गया, कॉस्ट, उसकी जितना चुराया गया उसके वो उसका सबका टोटल किया तो कितने पैसे होते हैं, जैसे कि इतनी ज्वेलरी थी, इतनी चीज़ें थी, तो सबका टोटल करके आप लगाते हो तो इतने पैसे हुए होंगे, वो आपको अंदाज़ा लगाना है। रिपोर्ट टू पुलिस, आप रिपोर्ट करते हो, एफर्ट्स टू रीच आउट द क्रिमिनल आर ऑन, और वो लोग प्रयत्न करते हैं कि क्रिमिनल पकड़े जाए, तो रिपोर्ट लिखना है कि चोरी हुई है, उसका सब कुछ क्या क्या हुआ, कौन था घर में, ये सब कुछ आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा यूनिट 3 है वो कंप्लीट होता है। आपको अपनी वर्कबुक में जैसा आता है वैसा आप खुद की राइटिंग में आपको राइटिंग सेक्शन में लिखना है, ठीक है, और जैसे सेंटेंस बना सकते हो वैसे, लेकिन खुद ही करना है आपको, बॉल पेन से सब कुछ कंप्लीट करना है, ओके। यूनिट 3 आपको फ्रेंडशिप एंड ड्यूटी वर्कबुक में पूरा कंप्लीट कर लेना है।